Hello everyone. So we were doing our chapter number 2 for class 8, linear equation in one variable. Okay, we have completed our introduction part, that what is the equation, what are the algebraic expression, what are the linear equation, and we have also seen the three type of linear equation in our previous class, that is x plus a equal to b, ax plus b, ax equal to b, and ax plus b equal to c. These three types of linear equation we have seen in our previous class. X plus a equal to b, like x plus any constant equal to any other constant. Ax plus b equal is like 2x equal to any constant. Ax plus b equal to c, like 3x plus 9 equal to any constant. Okay, these three type of equation we have seen in our previous class, and we have also seen the finding the solution of the linear equation. Means what is the meaning to find the solution of a linear equation? To find the value of the variable of a equation is called the finding the solution of the linear equation. And we have also find the solution of the linear equation of this type. Okay, x plus a equal to b, this type of linear equation we can solve by two methods, in which in the method 1 we have seen that we have to perform same type of operations to both side of the equation. Means if we want to add something in the left hand side, then we have to add that same term to the right hand side, so that the equation remain the balance. Okay, and in our method 2, that was the transpose method. Method 2 was the transpose method, in which we have seen that we separate the variable to one side of the equation, and the other terms with the variable, that like in the equation x plus a equal to b, we kept the variable to the left hand side, and the other terms will transpose to the right hand side, and the term having the positive sign will become negative, and the term with negative sign after transposing to right hand side will become the पॉजिटिव. ओके, सो ये हमने देखा था कि ये तीनों टाइप की इक्वेशन हमने देखी थी. इसमें हमने इस टाइप की इक्वेशन को मेनली सोल्यूशन फाइंड करना सीखा था, और इसके लिए हमने दो मेथड यूज़ किए थे. मेथड 1 जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम बैलेंस जैसे करते हैं, किसी चीज़ के वेट को बैलेंस करते हैं, तो उसी तरीके से आपका मेथड 1 होता है कि जो ऑपरेशंस हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड इन द मेथड 2 ट्रांसपोज मेथड में हमने कहा था कि आपको अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स अगर आपको इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप वेरिएबल को एक साइड में रखिए, आइदर इन लेफ्ट हैंड साइड और इन राइट हैंड साइड, और वेरिएबल के अलावा जो भी टर्म होती है उसको आप अदर साइड में ले जाइए. अगर वो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है तो अदर टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. उससे क्या होगा, प्लस साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है ट्रांसपोज होने के बाद, और नेगेटिव साइन क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है आफ्टर transpose. Okay, so this we have seen in our previous class. So we will now see the solution of a linear equation of this type of equation, this type of linear equation, and this type of linear equation. So first start with this. Okay, in this type of linear equation, like ax equal to b. Okay, first we see the method 1. What we will do in the method 1, we try to balance the equation. The equation is already balanced, but we try to find the value of the variable by balancing the equation. Means what we will perform in the left hand side, we also perform that in right hand side also. Okay, so in this type of equation, ax equal to b, here is the variable x. ओके, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करते हैं, x को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. मींस इसके साथ में जो भी वैल्यू है वो रिमूव हो जाए, और उसे रिमूव करने के लिए मेथड 1 में हम क्या करते थे, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन हम कहाँ लगाएंगे, राइट हैंड साइड में लगाएंगे. ठीक है, तो इसमें
जब इस टाइप की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे क्या था आपका x प्लस ए था, x प्लस ए इक्वल टू बी था। तो a क्या था, वेरिएबल में ऐड हो रहा था। तो वेरिएबल को अकेला करने के लिए या वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज इसमें ऐड हो रही थी हमने उसी चीज को क्या कर दिया था, सब्सट्रैक्ट कर दिया था। यानी x प्लस ए में हमने क्या कर दिया था, माइनस ए कर दिया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में किया था तो उसको हमने राइट हैंड साइड में भी परफॉर्म किया था, जिससे x की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी, b माइनस ए आ गई थी। ओके लेकिन अब इसमें देखिए यहाँ पे x के साथ जो a है वो ना तो ऐड हो रहा है ना सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब x के साथ जो a है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज x के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बच जाए, सिर्फ x बच जाए। जैसे x की मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यहाँ पे a है मल्टीप्लिकेशन में। ओके इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर x की मल्टीप्लाई में a है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस रखना है। तो इक्वल टू में इसके क्या है, b है, यानी कि हमें राइट हैंड साइड में, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में a से डिवाइड किया है तो हमें राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो x की मल्टीप्लाई में a है इसको ही हमने क्या किया है, a से डिवाइड किया है, तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा जो हमें फाइंड करना है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, b बाय a। ओके ये है आपका मेथड 1, जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके अब इसी को अगर हम डायरेक्ट कर दें, लाइक आपको पता है कि x की मल्टीप्लाई में अगर कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेथड 2 हम जो करते हैं ट्रांसपोज मेथड 2 जो ट्रांसपोज मेथड होता है वो क्या करता है, वो ही इस काम को डायरेक्ट कर देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करके दिखाया था, लेकिन ट्रांसपोज मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट a को उधर ले जाके माइनस कर देते थे। सेम यहाँ पे हमने करके बताया कि x को हमने कैसे सेपरेट किया है, जब हमने दोनों तरफ a से डिवाइड किया है। और मेथड 2 जो ट्रांसपोज मेथड क्या बोलेगा कि अगर ax इक्वल टू b है, यानी x की मल्टीप्लाई में अगर कोई भी आपका कॉन्स्टेंट है या कोई भी टर्म है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोज मेथड हो जाएगा। ओके तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके सो नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस of the type ax equal to b. So first is, I have written the questions here. First is 6x equal to 12. Okay in this type of linear equation, first we apply the method 1. Okay to find the solution we apply the method 1. Method 1 क्या कहता है, आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 6x इक्वल टू 12. ओके सो आपको पता है कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के मल्टीप्लाई में जो भी आपका कांस्टेंट है, टर्म है, जो x का जो कोफिशिएंट है, यानी x के मल्टीप्लाई में जो है आप उसी नंबर से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ओके क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 6x इक्वल टू 12 है, तो 6 यहाँ पे क्या है, x की मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग both side by 6. Okay so what we get, 6x लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, और जो हम ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही ऑपरेशन हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में करते हैं, ताकि इक्वेशन क्या रहे, आपकी इक्वल रहे। ओके तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या किया, 6 से डिवाइड किया, एंड राइट हैंड साइड में भी हमने क्या किया, 6 से डिवाइड किया। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये 6 से 6 कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और इक्वल टू में 12 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। ओके नाउ वी विल सी द सेम क्वेश्चन बाय मेथड 2, that is the transposing method. So the equation is given 6x equal to 12. Okay
सो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर कोई भी आप टर्म को या कांस्टेंट को नंबर को आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, इक्वेशन की अदर साइड में लेके जाते हैं, तो अगर वो आपके वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में क्या है 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में 6 है तो मल्टीप्लाई वाली नंबर जो होगा वो राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12/6। बाय दिस वी गेट x इक्वल टू 2। ओके, सो वी हैव सीन by method 1 x equal to 2, by method 2 x equal to 2. Now we will check the answer in if we put the value x equal to 2 in the left hand side of the equation, that is 6x. Okay, in the 6x left hand side क्या है equation की 6x, इसमें हमें क्या रखना है 2 रखना है, 6 multiply 2 that is 12। ओके, जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो इक्वेशन की क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। सेम यहाँ पे भी x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हम रखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। दैट्स मीन कि आपका जो आंसर है वो सही है, यानी x की जो वैल्यू है वो आपकी सही आई है बाय मेथड 1 एंड बाय मेथड 2। ओके, नाउ यू कैन कॉपी दिस, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, 2x/3 इक्वल टू 18। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन we will solve by the method 1 first. First we solve this by method 1. So by the method 1, if the equation given like 2x/3 equal to 18. Okay, so to find the value of the variable, what we will do, हम देखेंगे कि x की मल्टीप्लाई में क्या नंबर है। तो यहाँ पे देखो x की मल्टीप्लाई में 2 है और डिवाइड में क्या है 3 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x की मल्टीप्लाई में क्या है 2/3 है। ओके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x/3। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 × x। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, एक ही बात है। दैट्स मीन कि x की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई में जो है 2/3 उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो जब हम 2/3 जो मल्टीप्लाई में है इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर हम x को डिवाइड करते हैं 2/3 से तो आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं एक डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ये क्या हो जाता है आपका 3/2। ओके, तो हम कह सकते हैं कि x को डिवाइड करो 2/3 से या फिर x को मल्टीप्लाई करो 3/2 से, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे जब हम x को डिवाइड करेंगे x को डिवाइड करेंगे हम 2/3 से, यानी 2x/3 डिवाइड करना है हमें किससे, 2/3 से। क्यों, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में क्या है 2/3 है। तो हमें राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2/3 से। तो इस तरीके के फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड का साइन हटा के क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ये जो आपको फ्रैक्शन गिवन होता है इसको रिवर्स कर देते हैं और ये बन जाता है आपका 3/2। सेम आपका राइट हैंड साइड में भी हम यही करेंगे। यहाँ आपका 18 है, डिवीजन का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और 2/3 विल बिकम 3/2। ओके, सो यहाँ से आपको पता है कि देखो 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ 3 न्यूमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 2 है, यानी 2 न्यूमिनेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है। तो सेम टर्म न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट होके क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ओके, सो इसको मैं यहाँ कर देती हूँ 2x/3 मल्टीप्लाई 2x/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू आपका गिवन है 18 × 3/2।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए नीचे क्या है, 3 and 2 है, 3 × 2 है, और ऊपर भी क्या है, 2 × 3 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × x, क्योंकि ऊपर क्या है 2x 3, 2 × x × 3, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यानी 3 × 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, इक्वल टू 18 × 3, और डिवीजन में क्या है 2 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 9 × 18, तो ऊपर बचेगा आपका 9 × 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ x इक्वल टू 9 3 × 27. Okay, so this is the solution of the equation of the type 2x by 3 equal to 18. Okay, so आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में भी 3 दे रखा है, यानी x की मल्टीप्लाई में एक फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है 2/3। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी नंबर से आपको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x/3 को आपको क्या करना है, 2/3 से डिवाइड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 3/2, और ये आपका क्या क्या कैंसिल आउट होके क्या बनाएगा, सिर्फ x बनाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सेम आपका राइट हैंड साइड में 18 है, तो इसको हमें क्या करना था, 2/3 से डिवाइड करना था, तो मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 3/2, और ये क्या बनेगा आपका 9 3 × 27। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन कॉपी दिस नाउ। Now we will see the same question by method 2, that was the transposing method. So the equation given is 2x/3 equal to 18. Okay, so in the transpose method what will we do, the term that is in the multiply of the variable will become in divide after transposing to right hand side, and the term which is in division of the variable will become in the multiplication after transposing to the right hand side. हमने देखा था कि वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई में होता है वो ट्रांसपोज होके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो जो टर्म आपकी डिवाइड में होगी वो ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लाइक 2x/3 इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे देखो पहले 3 डिवीजन में है, तो इसको हम क्या ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, तो ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये आपका बन जाएगा 2x इक्वल टू 54। ओके, एंड आपको पता है कि यहाँ पे x की जो मल्टीप्लाई में होता है वो ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा x इक्वल टू 54/2। सो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 27। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 27। आप आंसर को रख के चेक कर सकते हैं, लाइक जब यहाँ पे आप x इक्वल टू 27 रखेंगे, यहाँ पे आप x इक्वल टू 27 रखेंगे, ये आपका चेक, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 18 आएगी, जो क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। ओके, तो दोनों मेथड से आपकी x की वैल्यू क्या आई है, 27 आई है, और x इक्वल टू 27 क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन कॉपी दिस एंड वी विल परफॉर्म द क्वेश्चन नंबर 3।